Yes, good morning to all. Can you hear me? आवाज सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Okay. So we will take revision because only two participants are there. So I will take revision and then start the next bit. Yesterday we have seen Ostwald dilution law. So Ostwald dilution law give the relationship between dissociation constant, degree of dissociation of weak electrolyte. Now for that we have considered a weak electrolyte Ba or Ab. 1 mole of Ba is dissolved in V cubic decimeter and alpha be the degree of dissociation. Then Ab is dissociated as A plus B minus. Now initial moles AB के 1 है क्योंकि 1 मोल लिया है हमने, A प्लस के 0 हैं और B माइनस के भी 0. इनिशियल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी अभी डिसोसिएशन होने के पहले एट टाइम t इज इक्वल टू 0. नाउ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एट टाइम t, जब डिसोसिएशन हो गया तो मोल्स कितने होंगे? 1 AB के मोल रहेंगे 1 माइनस अल्फा, A प्लस के रहेंगे अल्फा और B माइनस के रहेंगे अल्फा. Now alpha is degree of dissociation of weak electrolyte AB and C is the concentration of, that is concentration of AB in moles per liter. Understand? Then we have to calculate the concentration of AB. तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C से, अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C से और दिस अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C से. So concentration of AB is equal to C into 1 minus alpha, and concentration of A plus is equal to C into alpha, and concentration of B minus is equal to C into alpha. Now apply law of mass action to, that is a previous equilibrium, that is AB, and we get K is equal to concentration of A plus into concentration of B minus divided by AB. Here B plus is right by mistake, but it is B minus divided by AB, and that is equal to concentration of A plus की value C into alpha, concentration of B minus C into alpha divided by C into 1 minus alpha. Now this C and this C get cancelled. What remains? That is K into CA into alpha divided by 1 minus alpha. Now this C into alpha square divided by C alpha square divided by 1 minus alpha, where K is dissociation constant of, that is AB. Now for weak electrolyte, alpha is less than 1. So we can write that is 1 minus alpha is equal to 1. जहाँ पे 1 minus alpha है हम क्या लेंगे? That is 1 लेंगे. So that above equation becomes, that is K is equal to C into alpha square, C into alpha square, this, because 1 minus alpha we have taken 1. So or taking square root on both sides, we can take alpha square है, हमें alpha होना तो क्या होगा? We have to take square root on both sides. दोनों साइड का square root लेने पर alpha is equal to under root K divided by C, or C is nothing but 1 upon V, so as under root of K into V. So degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the square root of dilution, or inversely proportional to, that is concentration. And these are the two limitations of, that is the Ostwald dilution law. That is, this law is applicable only for weak electrolyte, and second, that is, this law is not applicable for strong electrolyte because strong electrolyte completely ionized to all dilute. Up to this in the last period we have discussed. Now the next point is transport number. So transport number, generally it is denoted by small t. It is denoted by small t. Now definition of transport number: the fraction of the total current carried by an ion is known as transport number. The fraction of the total current carried by an ion
is known as transfer. It is simply fraction. किसका fraction है? Total current carried by ion is called as transport number, or it is also called as transference number. That is, transport number is also called as transference number, or it is also called as Petroff's number. It is also called as Petroff's number. May be denoted by a set of symbol like T plus. देखिए, ट्रांसपोर्ट नंबर इज डिनोटेड बाय टी प्लस, टी स्मॉल टी और सफिक्स में इसके प्लस है, और टी माइनस कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी एंड सफिक्स में माइनस, और टी स्मॉल टी और सफिक्स में सी स्मॉल सी, टी सी और टी ए. देखिए टी प्लस यानी क्या? टी एंड हियर प्लस. प्लस यानी कौन सा आयन? हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन को हम क्या नाम देते हैं? कैटायन. तो टी प्लस मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. याद रखिए, टी यानी ट्रांसपोर्ट नंबर और प्लस यानी कैटायन, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. टी माइनस, माइनस हम कौन से आयन को बोलते हैं? एनायन को. सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन. और टी सी, that is the cat. C means T is the transport number and C is the cation, transport number of cation. And TA, T means transport number and A means anion, transport number of anion. So this is that is T plus transport number of cation, T minus transport number of anion, or TC or TA, that is cation and anion. Now transport number of cation TC is equal to, in the form of formula, that is a transport number of cation TC is equal to current carried by cation, current carried by cation divided by total current. So this is the formula for transport number of cation, that is TC, transport number of cation is equal to current carried by cation, यानी current cation ने कितना करंट कैरी करता है डिवाइडेड बाय टोटल करंट, दैट गिव द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन TC इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट, दैट गिव TC और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू, एनायन का कैसे मालूम करेंगे? सेम रहेगा, जहां पे कैटायन है वहां पे एनायन लेंगे. यहाँ पे by mistake C is written here, anion is there, current carried by anion divided by total current. Same formula is there here. cation की जगह cation में cation लेंगे और anion में anion लेंगे, that is current carried by, that is anion divided by total current is called as, that is the transport number of cation. Now very important, that is relation between transport number of cation and transport number of anion. TC that is transport number of cation plus transport number of anion, TA is equal to, always equal to 1. Remember that is very important. Problem हमेशा इस पे आता है कि TC plus TA is equal to 1, यानी ट्रांसपोर्ट कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों की एडिशन हमेशा जो है एक होती है. द सम ऑफ transport number of cation and transport number of anion is always equal to 1. So remember that relation. आपको एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है? देखिए ऑब्जेक्टिव में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन दिया जाता है, TC दिया जाता है और TA मालूम करने के लिए कहा जाता है. तो वेरी सिंपल, जो भी TC है उसको 1 में से माइनस करने का, यानी फर्स्ट कीजिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन 0.36 है. 0.36 is the transport number of cation. What is the transport number of anion? Yes, बता सकते क्या? 0.36 है कैटायन का. एनायन का कितना होगा? 0.64. Yes, correct. 0.64. Yes, correct. 0.64 भी चलेगा बोले तो, that is 0.64. 1 में से माइनस करना, 1 minus 0.36, that is 0.64. अगर ट्रांसफर नंबर ऑफ, that is anion, फर्स्ट कीजिए anion का दिया हुआ है is 0.48, 0.48 है. तो कैटायन का कितना होगा फिर? 0.48 है. 1 minus 0.48 करना है, कितना आएगा? 0.52. 0.52. करेक्ट. ऑलवेज कंपल्सरी वन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कंपल्सरी दिया हुआ है कि इसका
ट्रांसपोर्ट नंबर इतना है कैटायन का, तो इसका कितना होगा, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए आपको। परसों एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए, तो बहुत इजी है। तो ये सिर्फ 1 माइनस करना है, उसमें से 1 माइनस जो भी दिया हुआ है 0.0, और हमेशा 1, दोनों का एडिशन हमेशा 1 आना है। 0.52 और भी इससे प्रीवियस एग्जांपल में 0.48 1 आएगा, तो एडिशन हमेशा 1 आएगा, नॉट ग्रेटर देन 1। कैटायन का एनायन का एडिशन ऑलवेज 1, और ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट वगैरह में 1 एग्जैक्टली 1 रहेगा ना एडिशन बोर्ड में, और ये फ्रैक्शन में आएगा कैटायन का और एनायन का। इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज 0.37, कितना आएगा, 0.37 है कैटायन का, 0.63 आएगा। यस, एनायन का क्या होगा, 0.63 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.37 करना है, 0.30। सो इन दिस वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉब्लम आते हैं इस पे। अभी मैंने एग्जांपल बताया प्रॉब्लम की कैसे, हम अब देखेंगे लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो उसमें हम प्रॉब्लम देखेंगे 4-5 प्रॉब्लम में। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द definition of transport number. I will repeat in short. That is the fraction of total current carried by ion is known as transport number. It is also called as transference number or Hittorps number, may be denoted by symbol like T plus. T plus means transport number of cation, या TC भी लिखते हैं, T plus या TC same है। That is अगर सिंबल मैथमेटिकल सिंबल में लिखना है तो T प्लस लिखिए, वर्डिंग में लिखना है तो TC लिखिए, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। और T माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, या अगर वर्डिंग में लिखना है तो TA, A सफिक्स में लिखना है। सो it's a formula and very important relation. The sum of transport number of cation and transport number of anion is always equal to 1. That is TC plus TA is equal to 1. एक का ट्रांसपोर्ट नंबर देंगे आपको, दूसरे का मालूम करना है। अंडरस्टैंड? तो रिमेंबर दैट इज फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। Determination of transport number. There are 2 methods for determination of transport number. There are 2 methods for determination of transport number. One is moving boundary method, and second is Hittorps method. We see one by one. Determination of Hittorps number के 2 methods हैं, एक है moving boundary method और दूसरा है Hittorps method. वन बाय वन देखेंगे हम। सबसे पहला मेथड देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। सो फर्स्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज बाय मूविंग बाउंड्री मेथड. So we see it is the most accurate method used to determine transport number of ion in recent year. यानी exactly बहुत accurate जो है हम कैटायन या एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम कर सकते हैं ये मेथड का इस्तेमाल करके. So it is the most accurate method used to determine the transport number of ions in recent year. It is based on the direct observation of migration of ions under the influence of an applied potential. Now construction, important is the construction, how that is a moving boundary method is constructed. The apparatus used for this method consists of a long gas tube which is graduated in cc. Cc means per cubic centimeter, cc. That is titration में जो आप देखते हैं, टाइट्रेशन में जो ब्यूरेट होती है वो सीसी की होती है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर. कितना आपने वॉल्यूम लिया है, 10 सीसी बोलते हैं आप, 10 सीसी या 8.9 क्यूबिक सेंटीमीटर. एंड हैविंग 2 इलेक्ट्रोड, वन एट द बेस एंड अदर एट द टॉप. तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, द apparatus यूज्ड फॉर दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग गैस ट्यूब. ये लॉन्ग गैस ट्यूब है, देखिए ये बता रहा हूं मैं, दिस इज द लॉन्ग गैस ट्यूब. The moving boundary method consists of a long gas tube which is graduated in cc. यहाँ पे इसके स्केल्स हैं, देखिए जिस तरह से ब्यूरेट में रेडिंग्स के स्केल होते हैं वैसी स्केल है यहाँ पे रेडिंग्स के. अंडरस्टैंड? आपको ये मैं बताऊंगा वर्किंग में किस तरह से ये वर्क करता है. सो ग्रेजुएटेड इन cc, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे बट अगर एक्चुअल देखेंगे तो जिस तरह से ब्यूरेट की जो ट्यूब होती है उसी तरह से थोड़ा सा शेप इसका
अलग है, उस पर जो है ग्रेजुएटेड क्या है, ग्रेजुएटेड इन सीसी एंड हैविंग 2 इलेक्ट्रोड, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, वन एट द बेस एंड अदर एट द टॉप। इस पे 2 इलेक्ट्रोड है, वन एट द दैट इज बेस, नीचे है बॉटम में, दिस इज इलेक्ट्रोड, this I have shown here, that is this is one electrode and this is another electrode at the top, this is another electrode. So that is the apparatus used for this method consists of long gas tube which is graduated in CC and having 2 electrode, one at base and other at top. The glass tube is mounted vertically, vertically से हमने fit किए हैं या vertically रखे हैं. The glass tube is mounted vertically and is connected in series with millimeter. आप किससे कनेक्ट किए, देखिए यहाँ पे आप टॉप में जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड सबसे पहले हमने क्या किए हैं, मिलीमीटर से हमने उसको कनेक्ट किए हैं, मिलीमीटर, देन की से कनेक्ट किए हैं, देन बैटरी एंड देन दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रेहोस्टेट, और देन फाइनली दैट इज दिस इज द कॉलोमीटर, दैट इज इट इज कनेक्टेड in series with a millimeter से अटैच किए, then variable resistance से अटैच किए हैं, then a colorimeter and की, ये चीजें इसमें अटैच किए, देखिए this is millimeter, key, battery and that is the rheostat and this is the colorimeter and this is again connected with that is the another, that is part of or end of the electrode, that is one top में जो electrode है, टॉप में जो इलेक्ट्रोड उसका एक एंड हमने मिलीमीटर से कनेक्ट किया है, फिर रिले की, देन बैटरी एंड देन रियोस्टेट एंड दैट इज द हियर कॉलोमीटर से, एंड द अदर एंड ऑफ कॉलोमीटर इज कनेक्टेड टू दैट इज अ इलेक्ट्रोड एट द बॉटम. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. द इलेक्ट्रोड एट द टॉप इज प्लैटिनम वायर which act as cathode. जो ऊपर का जो देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये इट इज ए प्लैटिनम वायर एंड इट एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड है, दैट इज जनरली 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है. जो टॉप में इलेक्ट्रोड है इट इज ऑफ प्लैटिनम वायर का है और इट इज ऑफ द इट एक्ट एज कैथोड, while the base electrode is metal rod acting as anode. ये बेस इलेक्ट्रोड ये मेटल रॉड का है and it acts as that is the anode. So this is the construction of that is the moving boundary method. Very simple. It consists of a long tube graduated in CC having 2 electrode. 2 electrode एक top में है एक bottom में है और it is connected with millimeter. Then that is a variable resistance, colorimeter and key. The electrode at the top is platinum wire and which act as anode, while base electrode is metal rod, ये base electrode metal rod है, act as that is the anode. So this is the construction. Understand? Next, working. Now consider the determination of transport number. Consider the determination of transport number of H plus ion in HCl. अब देखिए HCl में 2 आयन है, कैटायन है एक एनायन है. कैटायन कौन सा है उसमें H प्लस और एनायन कौन सा है Cl माइनस. कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम क्या करेंगे, H प्लस का आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करेंगे, तो इसका मालूम कर सकते हैं आप क्योंकि 1 माइनस करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सो कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन इन HCl सॉल्यूशन. HCl सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, H प्लस आयन का जो है ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करेंगे बाय मूविंग बाउंड्री मेथड. So consider determination of transport number of H plus ion in a Cl solution by moving boundary method. For this purpose, the lower part of the cell is filled with electrolyte of cadmium chloride, while HCl solution of known concentration is slowly added from top so that clear boundary is visible at the junction of 2 solutions. देखिए यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखेंगे, so lower part of the solution, that is the this tube is filled with that is cadmium chloride solution, CdCl2 solution. lower part नीचे इस ट्यूब के निचले हिस्से में हमने क्या लिया है, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, पूरा फिल नहीं किया है, थोड़ा सा नीचे
दैट इज 1/4 हमने इसमें लिया है। और अपर जो है पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फील्ड विथ HCl, क्योंकि हमें HCl में से H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करना है, इसलिए हमने HCl ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंड? कब तक ऐड करना है? दैट इज अ क्लियर बाउंड्री इज ऑब्टेन बिटवीन दिस ट्यूब। देखिए ये क्लियर बाउंड्री यहाँ पे ए पर जो है क्लियर बाउंड्री आपको नजर आ रही है। अभी हमने करंट पास नहीं किया है, याद रखिए। सो दिस इज द क्लियर बाउंड्री बिटवीन दीज टू सॉल्यूशन। लोअर में कैडमियम क्लोराइड है, सॉल्यूशन है, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और अपर ट्यूब में क्या है, अपर साइड में क्या है, हमने HCl का सॉल्यूशन दिया है। तो जब दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो अपर साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है और लोअर साइड में कैडमियम क्लोराइड का, तो आपको एक लेयर दिखाई देगी। देखिए ये लेयर यहाँ पर जो है, दिस इज द लेयर। अंडरस्टैंड? नाउ so for this purpose the lower part of the cell is filled with an electrolyte cadmium chloride। lower part में निचले हिस्से में हमने cadmium chloride का solution लिया है, while HCl solution of known concentration is slowly added from the top so that a clear boundary is visible at the junction of the two solution। दोनों सॉल्यूशन के जंक्शन पर एक क्लियर बाउंड्री बोलेंगे उसे हम, एक क्लियर बाउंड्री आपको नजर आ रही है। मैंने अभी बताया आपको जिस तरह से बाउंड्री। नाउ a platinum wire in HCl solution act as cathode। as you know that is the platinum wire is electrode and it act as that is the cathode, while cadmium stick, cadmium की जो सलाख है, रॉड है, in cadmium chloride act as anode। So this is the, now on passing a current between two electrode hydrogen gas is evolved at cathode। जब इस इलेक्ट्रोड में से, दोनों इलेक्ट्रोड में से हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। ऑन पासिंग ए करंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, दैट इज कैथोड जो अपर साइड में है, टॉप में है इलेक्ट्रोड, वो उस पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एंड द हाइड्रोजन आयन माइग्रेट अपवर्ड थ्रू द सेल। देखिए जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये होगी, इवॉल्व होगी, और ये जो H प्लस आयन है ये अपर साइड में जो है माइग्रेट होंगे, ट्रांसफर होंगे, अपर साइड में ट्रांसफर होंगे। नाउ as these ions move towards the cathode की तरफ जाएंगे H प्लस, their position is taken by Cd plus ion and hence the boundaries between the two solution also move upward। यानी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री भी क्या है, जब H प्लस आयन ट्रांसफर होंगे टॉप में ऊपर के इलेक्ट्रोड की तरफ, तो जो बाउंड्री भी क्या होगी, दैट इज टॉप की तरफ जाएगी। दैट इज देखिए ये बाउंड्री जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें H प्लस आयन दैट इज टॉप इलेक्ट्रोड, ऊपर के जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, उस पर हाइड्रोजन गैस पास होगी और H प्लस आयन मूव टुवर्ड्स दैट इज कैथोड। ये H प्लस जो है ऊपर जाएंगे। देखिए तो ये बाउंड्री पहले यहाँ पर थी जब हम करंट पास नहीं कर रहे थे उसमें, आफ्टर जब करंट पास कर रहे हैं उसमें तो क्या हो रहा है, ये B लेवल पे जा रही है बाउंड्री। B पहले यहाँ पे थी, A पर थी, और आपको यहाँ पे जो A पर बाउंड्री थी उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो रीडिंग है वो नोट करना है। अंडरस्टैंड? जो बाउंड्री पर जो रीडिंग है, जो भी है रीडिंग, वो आपको नोट करना, क्योंकि हमें क्या करना, लास्ट में क्या करना, इतना डिस्टेंस मेजर करना है, x इतना ट्रैवल हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो फार्मूले में रखना है। तो पहले ये डिस्टेंस नोट करेंगे आप, ये कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो कितना ट्रैवल हो गया आपको मालूम होगा। ये फर्ज कीजिए 13.5 है, फर्ज कीजिए 13.5, और ये हो गया 20.5। कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल हो गया, पहले 13.5 था, 13 पॉइंट बाउंड्री का जो लेवल था वो 13.5 था। डिस्क्रिप्शन में जिस तरह से रेटिंग होती है वैसी रेटिंग है, ये आपको देखकर 13.5 है फर्ज कीजिए। और बाद में जो ट्रैवल है, आफ्टर करंट पासिंग हाइड्रोजन गैस पासेस एट कैथोड एंड H प्लस आयन मूव अपवर्ड, सो यहाँ पे बाउंड्री अपवर्ड में चले गई और यहाँ पे ये B हो गई। तो कितना ट्रैवल हो गई, ये डिस्टेंस मालूम करना है। ये है 13.5 फर्ज कीजिए और ये है 20.5, कितना आएगा
20.5 माइनस 13.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 7. 7, करेक्ट 7। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं और वो फार्मूले में अंडरस्टैंड देखेंगे हम आगे। सो दैट इज as these ions move towards the cathode, their position is taken by Cd plus ion, and hence the boundaries between the two solution also move upward. जो boundaries है वो upward में move होती है. The boundary between these two electrolyte is visible because of the difference in refractive index of the solution. Visible नजर आती है boundary आपको, क्यों नजर आती है? क्योंकि दोनों में refractive index का difference, visible difference in refractive index of the solution. Now since cadmium ion Cd plus ion have lower velocity, इसकी velocity कैसी है? Lower है, इसलिए नीचे साइड में है, और HCl की velocity क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो टॉप में solution है. That is, since Cd plus 2 ion have lower velocity than H plus ion, they never overtake the latter, and sharp boundary is always maintained between the two solution. यानी जिसकी velocity कम है वो क्या होगा? जिसकी डेंसिटी कम है वो सॉल्यूशन क्या होगा? Cd plus 2 आयन है लोअर वेलोसिटी, सो ये क्या होगा? नीचे रहेगा, और बाउंड्रीज डिस्टर्ब नहीं होंगे. जो बाउंड्रीज है दोनों सॉल्यूशन में जो फॉर्म हुई है वो एज इट इज रहेगी. दैट बाउंड्री बिकम्स एज इट इज. Always maintained between the two solution. The total current passed through the solution is determined by using silver colorimeter. उसमें जो करंट पास है वो करंट किससे पास, कितना करंट पास किए वो हम कॉलम सिल्वर कॉलोमीटर यहाँ पर है, देखिए डायग्राम में देखेंगे. दिस इज द सिल्वर कॉलोमीटर. इससे हम उसका करंट कितना पास हो गया वो मालूम कर सकते हैं. इट इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बाउंड्री एंड स्वेप्ट वॉल्यूम. यानी आपको जो वॉल्यूम स्वेट भी जो आपको बाय बाउंड्री इज नोटेड. यानी यहाँ से अभी आपने 7 जो बताए थे वो नोट करना है. ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल जो रेटिंग है वो माइनस करेंगे, कितना ट्रैवल हो गया. तो ये डिस्टेंस मालूम, हमने फर्स्ट किया है कि 13.5 है 20.5, तो 7 जो है रेटिंग है आपकी. फॉर्मूले में देखेंगे हम आगे. अंडरस्टैंड. सो दिस इज अबाउट द वर्किंग. Now calculations. Lastly calculation. अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कैलकुलेशन करना है. Let the concentration of H plus ion in HCl solution be C. हमने ऐसा फर्ज किया है कि concentration H plus ion का HCl में कितना है? C ग्राम इक्वलेंट पर लीटर. यानी C जो है concentration है. In short, let A be the area of cross section of the glass tube. ये जो glass tube है उसका एरिया कितना है? कैपिटल A है. And B D small d with the displacement of the boundary from initial to final position. यानी D क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है, हटाव जितना हुआ बाउंड्री का, जितना इनिशियल से फाइनल तक कितना हटाव हो गया वो हटाव है D. यानी अभी हमने एग्जांपल लिए थे, कितना होगी D की वैल्यू? 13 माइनस 25.5 माइनस 13.5 कितना आया था? 7. तो 7 होगी. एग्जांपल बोल रहा हूं मैं. D की वैल्यू कितनी होगी? 7. तो 7 जो है वो D होगा. क्या है D? यानी D विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. यानी इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. हमने क्या किया है? 7 cc हमने लिया है. 7 cc 7 क्यूबिक सेंटीमीटर. Now the volume set by the boundary. देखो कितना वॉल्यूम कैसा मालूम करेंगे उसका? वॉल्यूम सेट बाय बाउंड्री इज इक्वल टू A into D. A into D. V यानी A into D is V. वॉल्यूम कितना वॉल्यूम सेट किए वो हमने मालूम किया है A into D. Now the number of gram equivalent of H plus ion migrated towards cathode can be given as the number of gram equivalent of H plus ion migrated towards cathode can be given as that is equal to V. V यानी the volume saved by the boundary. उसकी वैल्यू कितनी है? A into D divided by 1000 into C. C means concentration. That is equal to V. V की वैल्यू कितनी है अभी हमने मालूम की ऊपर. V कितना है? V ये है V. क्या होगा? A into D. Put the values. A into D into C divided by 1000. A means what? Area of cross section. D means
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री जो भी होगा 7 अभी हमने फर्ज किया था 7। सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है आपको नॉन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द that is now 1 gram equivalent is equal to 1 Faraday. 1 gram equivalent is equal to 1 Faraday. Therefore, A into D into C as it is divided by 1000 gram equivalent is equal to Faraday में convert करना है इसे, that is A into D into C divided by 1000 Faraday, and hence the quantity of charge carried by H plus ion in VCC of solution, that is T plus means transport number of cation, is equal to A into D into C divided by 1 upon, that is divided by 1000. that is formula क्या होगा हमारा T plus के लिए, तो वही formula है, ये जो formula है प्रीवियस में दिया था, जो बताया था मैंने आपको, वही formula है। इसको थोड़ा सा rearrange करें, A into D into C divided by 1000, वही फॉर्मूला है, A into D into C divided by 1000, ये सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 इस तरह से लिखा है। Therefore ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन फैराडे में अगर मालूम करना है, T प्लस अपॉन Q, T प्लस अपॉन T प्लस मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय Q, Q मीन्स करंट, quantity of not current, quantity of electricity passed, quantity of electricity passed. Therefore that is equal to T plus की वैल्यू कितनी है, A into D into C, A into D into C divided by 1000, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, divided by again Q, Q that is the quantity of electricity pass, और what is the formula for quantity of electricity pass, क्या है, Q is equal to, किसका प्रोडक्ट है Q, फिजिक्स वाले, फिजिक्स में है Q, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I मीन्स करंट इन एम्पीयर, T इज टाइम इन सेकंड, यानी Q की किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी। देयरफॉर दैट इज A इंटू T इंटू C डिवाइडेड बाय 1000, और Q की वैल्यू क्या है, I इंटू टी। Therefore where Q is the quantity of electricity passed, I is current in ampere, and T is time in second. So put the values. A की value रखिए आप, A means A value area of cross section of tube, area of cross section of tube. B means displacement, C means concentration, into I means current in ampere, and T means time in second. Put the values रखिए और सॉल्व कीजिए, we get the value that is the transport number of H plus ion. अब Cl माइनस का मालूम करेंगे, H प्लस का मालूम होगा ये फॉर्मूले की वजह से, 0.53 H प्लस का। अब Cl माइनस का कैसे मालूम करेंगे, एक में से माइनस करना है उसको, 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, 0.47 आएगा। इस तरह से आप जो है ये मालूम कर सकते हैं। इसमें जनरली आपको वो जो ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करना है उस पर क्वेश्चन, आप ये थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो 2 मेथड में से एक मेथड कंपल्सरी आता है आपको एग्जामिनेशन में, अगर थ्योरेटिकल एग्जाम है। एक्सप्लेन मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, और एक्सप्लेन that is Hitrop's method for determination of transport number। दोनों में से एक एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, याद रखिए। और प्रॉब्लम बहुत इजी है, बताया मैंने आपको, एक आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर दिया हुआ है, दूसरे का मालूम करना है, वेरी सिंपल, 1 में से माइनस करना है उसको, 1 में से माइनस करना है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादातर एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम है, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम जनरली इस पर आता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ transport number by Hitrop's method. This is diagram construction we have seen, very simple. A tube is there and consists of graduated in CC. 2 electrodes are fitted, one at top, other is bottom. Bottom is at the top, act as the electrode is, that is the platinum electrode, act as cathode. At bottom it act as, that is the anode, which is cadmium chloride, and that is
this is the working, and that is in this way, that is transport number of cation can be calculated by using formula A into D into C divided by 1000 into IT. A is area of cross section of tube, D distance traveled by boundary, C concentration 1000 into I current in ampere. ये आपको पूरी वैल्यूज दिए हुए होंगे, वैल्यूज पुट करना है एंड सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन H प्लस मिलेगा। अब Cl माइनस यानी एनायन का मालूम करना है तो क्या करेंगे इसमें, ये जहां यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 माइनस ये आंसर करेंगे, जो भी 0.53 आएगा फर्स्ट करो तो Cl का कितना होगा 0.47। इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। कल जो है हम दूसरा मेथड देखेंगे, थोड़ा लेंथी मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैलकुलेशन, ये सब चीजें इसमें देखना है, डायग्राम वगैरह। तो कल जो है दूसरा मेथड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय ट्रॉप्स मेथड, ये जो है हम कल देखेंगे। अंडरस्टैंड? सो वी विल स्टॉप हियर, इफ एनी डिफिकल्टी इज देयर देन प्लीज आस्क, otherwise we will end the meeting. Okay, if you have any difficulty, write in chat box.